बड़ी खबर दिल्ली तो सामने आ रही है जिथे एसी ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਣ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ बड़े ही सीरीयस हैं। शुरुआती जांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏਸੀ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:47 ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ जो इस मामले दे विच इस हादसे दे विच जिन्हां दा बुरा नुकसान होया है, जो कि सीरीयस हैं या फिर झुलस गए ने, उन्हां दी संख्या अजे पूरी तरह दसना मुश्किल है, क्योंकि सर्च अभियान अजे भी जारी है। क्योंकि एसी दे ब्लास्ट होने तो बाद हजे तक 9 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। तो फायर कर्मी दसदे ने कि फायर कंट्रोल रूम नूं सवेरे 3:47 ਤੇ सूचना मिलती है। सूचना मिलने तो बाद 14 फायर अटेंडर मौके पर पहुँच जाते हैं। अग ते काबू पाने के लिए बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਸੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਏਸੀ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਕਾਂਸਲ ਫੋਨ ਲਾइन ਤੇ जुड़ चुके हैं। तो कमल ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਮਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक बार विस्तारपूर्वक साझी करो। अब अगर बात करें जिस तरीके से सुबह 4 बजे का वक्त है और 4 बजे के वक्त जिस तरीके से दिल्ली का विवेक विहार इलाका है, जहाँ ये हाई सोसाइटियां जो है वो बिल्डिंगें बनी हुई है और इस बिल्डिंग के घर बी ब्लॉक में ये घर था जिसमें 8 फ्लोर जो है वो बने हुए थे। अलग अलग इसमें परिवार जो है वो रह रहा था, लेकिन जिस तरीके से सेकंड फ्लोर के अंदर जिस तरीके से सुबह 4 बजे से के आसपास जो है आग लगी, आग लगने के साथ साथ ये जो आग है वो बढ़ती चली गई थर्ड और फोर्थ फ्लोर की तरफ, जिसमें करीब वहां पर रहने वाले 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और जिसमें से कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आग लगने की कॉल फायर ब्रिगेड को प्राप्त हुई, मौके पर 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया जब आग को काबू पाया गया। लेकिन अभी कूलिंग का काम लगातार वहां पर मौके पर किया जा रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद जिस तरीके से वहां पर कूलिंग जो है वो की जाती है, तो कूलिंग का काम लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मौके की अगर बात करें तो बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा और इलाके के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौके पर पहुंचे। स्थिति का जो है वह जायजा लिया जा रहा है और अब जो
जो एजेंसियां हैं या फिर फायर ब्रिगेड की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो वो अब इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई है। क्या स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर कि एसी का कंप्रेसर जिस तरीके से फटा है जिसकी वजह से आग लगी है, या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इसकी जांच जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से गर्मियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आग लगने की खबरें दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकारें को सोचना पड़ेगा। कमल, एसी का फटना या फिर शॉर्ट सर्किट होना, मतलब किसकी इसमें लापरवाही देखी जा सकती है, या फिर लोगों का क्या कहना है? अगर लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई हो तो क्या इसमें निकल के सामने आ सकता है आपके हिसाब से? किस तरीके से आप देखते हो इस मामले को? बिल्कुल, जिस तरीके से आग लगी है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आग एसी का, क्योंकि पिछले जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर भी पहले कंप्रेसर जो बाहर जो कंप्रेसर लगा होता है, वहां पर आग लगने की वजह से पूरे घर में आग फैल जाती है, जिसकी वजह से भारी नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही जिस तरीके से स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एसी में आग लगने की वजह से जो है वो पूरे घर में आग लगी है, तो इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग जो है वो किस वजह से लगी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਏ ਨੇ। ਏਸੀ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਲੋਕ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जेटीबी हॉस्पिटल की मोर्ची ले जाया जा रहा है और वहाँ देखा जाएगा कि किसकी बॉडी है, उनके परिवार वालों को बुलाया जाएगा। ये हाँ, वही है कि सब अधिकतर कंकाल में कुछ परिवर्तित हो चुकी हैं बॉडियाँ, तो इसलिए अब ये डीएनए के माध्यम से ही चेक किया जा सकता है कि भाई ये किसका है। लेकिन फ्लोर पर जिस मिली है, जहाँ जहाँ बॉडी मिली है, वो बाकायदा फोटोग्राफ्स प्रॉपर तरीके से पुलिस ने अपने पास ले ली है, तो दैट उससे भी एक आसानी होगी लिंक करने में कि किसकी परिवार के सदस्य गए हैं। सर, आग लगने की कोई वजह तो कि शॉर्ट सर्किट ही कहा जा रहा है, तो ये तो एग्जैक्ट पता लगा जाएगा कि भाई कहाँ से कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एसी की वजह से आग लगी है, और वो रात को ऐसा समय होता है सोने का 3:45 बजे का, जब आदमी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है कि पता भी नहीं लग पाता है, तो उस वजह से ये ज्यादा कैजुअलिटी जो है, जो डेथ हुई है, वो इस वजह से हुई है। सर, आप इनकी फैमिली वाले से हाँ, मैं अभी ये दुर्घटना हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको कब पता चला, कब आया आपके अंदर, आपको कैसा लगा? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ विवेक विहार बी ब्लॉक है, B13 नंबर है, 8 फ्लैट बने हुए हैं इसमें, और शॉर्ट सर्किट की वजह से 3:45 बजे के लगभग आग लगी, और आग लगने के बाद आग से जो है पूरे 4 फ्लोर तक आग फैल गई, ऊपर 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक। और कुछ लोग ऊपर दौड़े, लेकिन ऊपर का ताला लगा हुआ था, और ताला लगा होने की वजह से ताले को तोड़ नहीं पाए, और धुएं की वजह से 3 लोगों की डेथ हो गई ऊपर, और 1 फ्लोर पर 5 लोगों की डेथ हुई, और एक व्यक्ति की डेथ हुई। अब सभी की स्थिति बहुत नाजुक, मतलब स्थिति ऐसी है कि पहचान करना बड़ा मुश्किल है। कुछ 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको पहचाना जा सकता है, बाकी को पहचानना बहुत मुश्किल है। वो तो अब जेटीबी हॉस्पिटल की मोर्ची ले जाया जा रहा है और वहाँ देखा जाएगा कि किसकी बॉडी है, उनके परिवार वालों को बुलाया जाएगा। ये हाँ, वही है कि सब अधिकतर कंकाल में कुछ परिवर्तित हो चुकी हैं बॉडियाँ, तो इसलिए अब ये डीएनए के माध्यम से ही चेक किया जा सकता है कि भाई ये किसका है। लेकिन फ्लोर पर जिस मिली है, जहाँ जहाँ बॉडी मिली है, वो बाकायदा फोटोग्राफ्स प्रॉपर तरीके से पुलिस ने अपने पास ले ली है, तो दैट उससे भी एक आसानी होगी लिंक करने में कि किसकी परिवार के सदस्य गए हैं। सर, आग लगने की कोई वजह तो कि शॉर्ट सर्किट ही कहा जा रहा है, तो ये तो एग्जैक्ट पता लगा जाएगा कि भाई कहाँ से कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एसी की वजह से आग लगी है, और वो रात को ऐसा समय होता है सोने का 3:45 बजे का, जब आदमी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है कि पता भी नहीं लग पाता है, तो उस वजह से ये ज्यादा कैजुअलिटी जो है, जो डेथ हुई है, वो इस वजह से हुई है। सर, आप इनकी फैमिली वाले से हाँ, मैं अभी फैमिली वाले तो नजर अभी नहीं आ रहे, कुछ तो परिवार ही समाप्त, मतलब कह रहा हूँ नहीं, जैसे कि आपको बताया 5 लोग हैं एक फ्लोर पे मिले, मैं खुद देख कर आया, तो अब उनके परिवार वालों को, उनके रिलेटिव्स को पता लगेगा, तो जब जाकर वो यहाँ पर आएंगे तब वो बताएंगे। तो इसलिए कुछ के परिवार वाले यहाँ खड़े हैं, तो बेचारे उनकी दुख की जो है इतना जबरदस्त है, कोई भी किसी के परिवार में जाता है तो
कैसा होता है, अचानक चला जाए तो दुख की सीमा क्या होती है हम सब जानते हैं। तो इसलिए अभी तो वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बात करने की तो बात अलग है। तो इसलिए हम सब लोग यहाँ स्थानीय निवासी हैं, मैं यहाँ का ही निवासी हूँ, तो यहाँ हम सब लोग खड़े हैं और कोशिश है कि उनको सांत्वना। चरणजीत सिंह नाम है मेरा। सर, आग लगी थी, कितनी गाड़ियां आई और कितने लोग निकाला गया, अंदर फंसे होने की वजह से? इसमें 10 से ज्यादा गाड़ियां आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए हैं। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो लोग निकल गए थे फ्रंट से, वो लोग अगर उनको फोन कर देते कि यहाँ आग लगी हुई है और वो आ जाओगे, कि 3:30 बजे के रात से आग लगी हुई है, तो शायद मुझे लगता है वो सोए रह गए हैं। तो शायद उनको फोन करके बोलना चाहिए था किसी को कि वो उठ जाएं या आ जाएं। मेरे को लगता है वो उनको कोई किसी ने फोन ही नहीं किया। शायद ऐसी मुझे लगता है शायद 2 फैमिली है, एक फैमिली तो पक्का है, एक फैमिली के 4-5 लोग तो पक्का 100% है अंदर। कितने फ्लोर का सर ये है और कितने लोग रहते हैं? इसका टोटल मेरे ख्याल से 8 फ्लैट हैं और कितने लोग रहते हैं मेरे को ये नहीं पता, लेकिन 8 फ्लैट हैं, जिसमें से लास्ट के तो पीछे के 2 फ्लैट है, उसमें से लोग बाहर नहीं आए हैं टॉप फ्लोर पे। कौन सी जगह कहते हैं? ये विवेक विहार बी ब्लॉक है। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित है। उनकी आग लगी थी, कैसे आग लगी और कितने लोग निकाले गए? एसी में आग को थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है और इसके अंदर से अभी तक कम से कम 12 से 15 लोग निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 से 5 लोग अंदर मिसिंग है अभी भी। ये अंदर मिसिंग है? हाँ, अभी आग लगी थी रात को 3:15 बजे। तो फायर की गाड़ी आ गई थी? फायर की गाड़ी 3:35 पे आ गई थी पहली गाड़ी। तो लोगों को कैसे? लोगों को पहले कईयों को तो स्टेयर से निकाला था, फिर बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई थी और जो पीछे 3 लोग फंसे थे उनको एंगल काट के ग्राइंडर से तब निकाला गया 4:30 बजे। तो कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं? अभी भी फंसे हो सकते हैं, 4 से 5 लोग अंदर ही निकलने की कोशिश हो रही है, आग भी बुझाने की कोशिश की जा रही है अभी तक। कितने फ्लोर का ये मकान है? ये 4 फ्लोर का मकान है। चारों फैमिली अंदर ही रहती है या आगे? नहीं, चारों फैमिलियां बाहर आ चुकी हैं। वैसे तो सारी फैमिलियां सारी सेफ हैं, लेकिन अभी फिर भी 4-5 लोग पता नहीं लग पा रहा कि मिसिंग कहाँ है। मतलब इस 4 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर ही 8 फ्लैट है। देखिए, घटना बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मैं बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती हूँ। उसकी आग मेरे घर में भी आई, मेरे घर का भी एक कमरा जला है, तो मैं समझ सकती हूँ जो सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। 3:30 बजे से ये सिचुएशन चल रही है। हम 3:45 बजे से आग बुझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड बुलाना, सब कुछ जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हम कर सकते हैं लोगों को बचाने की, हम सब ने कोशिश करी। पर घटना इतनी भयंकर थी कि लोग जीने से बाहर नहीं निकल पाए, उतर नहीं पाए। जीने के रास्ते ब्लॉक हो चुका था आग की वजह से, घर के दरवाजे लॉक हो गए थे, ऊपर जाने का रास्ता जो था जीने का वो बंद था, लोग निकल नहीं पाए धुएं की वजह से, या अपने घर को बचाने की भी कोशिश करी। और मुझे लगता है मेन जो कारण था वो धुआं सबकी जानलेवा वो बना। बताया जा रहा है कि बॉडी इस कंडीशन में है कि पता ही नहीं चल रहा कौन लेडीज है कौन बच्चा क्या है। नहीं पता चल रहा है, मैं खुद जाके ऊपर देख कर आई हूँ, किसी की बॉडी नहीं पता चल रही। लेडी के कंगन था, चूड़ी पहनी थी, जिसकी वजह से पता चला कि वो महिला है, और एक बच्चा जो उन्होंने अपने गले से लिपटा हुआ था वो पता चला। जैसे 3 दिन से वायरल भी फोटो वो याद जबलपुर वाला सेम।